Hello everyone, welcome back to the class of Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept. So I'm back with the new video, and in this video we're going to talk about the new point from your chapter, magnetic effect of electric current. In this video we will see the direction of magnetic force whenever the current flows through the two parallel wires, and we'll discuss about the formula of the force when two wires are kept parallel to each other, and at last we will derive the formula of Lorentz force. So please don't forget to watch this video till the end to learn the whole concept. These are the main points of this class as I have written on the board. The first one, that is the magnetic force due to the current carrying wires. The second one will be the force acting on the rod, that is magnetic force. Third one is the derivation of magnetic force acting between the two current carrying parallel wires, and at last we will discuss the derivation of that Lorentz force. Okay, so let's recall the previous videos of this class of this channel. In the previous videos we were discussing solenoid, toroid, their derivation, that is B is equal to mu naught Ni. Basically the solenoid and toroid, these are the construction to get the magnetic field, stronger magnetic field. In the case of solenoid we have seen that there is wrapping of the wire on a material, and when there is endless solenoid, that is called toroid, formula remains same. The only difference is that B is equal to mu naught Ni and small n is equal to capital N upon L in the case of solenoid, while in the case of toroid we have mu naught Ni where N is equal to capital N upon 2 pi r. So all the videos are of this chapter, that is magnetic effect of electric current, and also that previous chapters are available as a playlist on this channel. Any one of you want to learn those concepts of that chapter, just go to the YouTube search box, just write Sachin Sir Physics, easily you will be able to get all that videos. So let's start the class. सबसे पहले हमें बात करना है कि जब भी दो वायर्स में से अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो सेम डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जनरेट होने ही वाली है, लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स का टाइप कैसा होगा, नेचर कैसा होगा. जैसे अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. दैट फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव. इन अ सेम वे मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर. एम्पियर ने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए, and after doing so many experiments he concluded that whenever current flows through the two parallel wires and they are in the same direction, you can see first wire, second wire, and the currents which are passing through that wires are in the same direction. यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा, एडजस्ट कर लेना. सो यहाँ पे ये वायर में से करंट चल रही है और इस वायर में से इस डायरेक्शन में करंट चल रही है. यू कैन सी दोनों करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है. तो कभी भी सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी, डैम श्योर मैग्नेटिक फोर्स तो जनरेट होने ही वाला है. रीज़न देखो, ये वायर अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. एम आई श्योर? Yes, and again this wire will also produces a magnetic field around it. Two magnetic fields are there, they will interact, and if the magnetic field lines are interact, that means there will be the force, and that force will be attractive force. So you have to remember, when the current flows in the same direction of the two parallel wires, then always that wires will attract, magnetic force will be attracted one. ओके, द अपोजिट कंडीशन, इसमें इस डायरेक्शन में करंट चल रही है और इसमें इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसके लिए एम्पियर ने कहा कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन के करंट किसी वायर में से फ्लो करते हैं, दे विल ऑलवेज रिपेल. उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है. इज दैट क्लियर? सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन. यू शुड रिमेंबर दिस थियरी. ओके, द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड. इसे हम समझने की कोशिश करते हैं विथ अ डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम. यू कैन से देयर वी हैव अ टू मैग्नेटिक पोल्स, one is north, another is south, and we all know that magnetic field lines always emerge from north and it always goes towards south. मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ चली जाती हैं. इस नॉर्थ और साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस में आई हैव केप्ट अ रॉड. ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का है, दैट इज अ टाइप ऑफ रॉड हैविंग लेंथ एग्जैक्टली इक्वल्स टू एल. It's a kind of experiment
and then we'll discuss the result, we'll discuss the formula of that. Okay, so north और south के magnetic field के अंदर we simply put a rod of length L and then the two ends of the rod is connected with a key as well as battery. Why we are joining the battery to the end of the rod? Simple, to get some current flowing through that rod, उस रॉड में से कुछ करंट को फ्लो कराने के लिए. देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप वहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करके उस की को टैप करेंगे, की को चालू करेंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से होते हुए बैटरी के कहाँ चला जाएगा, माइनस में. नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेंटेंस. यहाँ पे भी मैंने यही कहा था कि वायर में से अगर करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास में जनरेट हो रहा है. तो यहाँ पे पहले से ही नॉर्थ और साउथ की एक मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पे दो वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड था, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ का एक मैग्नेटिक फील्ड है. उसके अंदर हमने एक रॉड रखा और फिर उसमें से भी करंट पास आउट करा रहे हैं. तो सोचिए क्या होगा, अब ये रॉड भी अपने आसपास में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी. तो क्या हो गया, again interaction of magnetic field. And dear student, you should remember this concept. Whenever there is a interaction of magnetic field lines, always there is a kind of force. वहाँ पे एक force 100% लगेगा ही. तो अगर एक हमारे पास पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है B अमाउंट की, that is Tesla, some Tesla, 20 Tesla or 40 Tesla, and then we are keeping a rod into that magnetic field, then that rod will experience a force, might be in the upward direction or in the downward direction. It depends on the position, its length as well as magnetic field as well direction of the current. तो एम्पियर ने ये बोला कि अगर मैंने इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट सपोज किया दैट इज DL, तो जो करंट एलिमेंट होगा दैट विल बी IDL, and the small amount of value of the force will be DF is equal to IDL cross B. It is very important line. L लेंथ की रॉड का स्मॉल एलिमेंट लिया तो DL, और उसमें से जो करंट पास आउट हुआ दैट इज IDL. दैट B इज नथिंग बट दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. सो द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दैट रॉड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B. और उस पूरे कंप्लीट रॉड पे अगर आपको चाहिए कि कितना हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना चाहिए. तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो IDL क्रॉस B और रिजल्ट मिलेगा F इज इक्वल टू IL क्रॉस B. From this equation we can be able to understand that this force depends on IL cross B. That means करंट और लेंथ का डायरेक्शन अगर I कैप है that is in the X direction and your magnetic field is in the Y direction, so we all know I cross J it will give you the result K cross. समझते हैं इसे. On this side you have a north pole and on this side we have a south pole. So these are the magnetic field lines, okay, from north to south, and we are keeping a rod in this way. ऐसे रॉड को रखा. Where is the direction of magnetic field? From north to south in this way, and we are keeping the rod in this way, that is perpendicular. And now I am connecting this with a simple battery. So when the current will flow through that, then this rod will experience a force, upward, downward, right side, left side. कहीं ना कहीं पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स इसे पुश करेगा, धक्का देगा, इसका डायरेक्शन, इसका पोजीशन चेंज होगा. तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस रॉड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, बिकॉज आप अगर आज ये थियरी नहीं समझ पाओगे तो फ्यूचर में आप AC जनरेटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पाओगे. ठीक है, वो सब इसी के बेसिस पे ही चलने वाला है. देन यू कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लेक्चर एंड लिसन ऑल माई सेंटेंस केयरफुली. ठीक है, तो मैंने ये कहा कंफर्म है इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा. देखिए, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज़ अवर लेफ्ट हैंड. ठीक है, लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर और ये सेकेंड वाली फिंगर, इसका यूज़ करना है. अब आपको क्या करना है, आपको अपने थंब पे लिख लेना है F.
कुछ इस तरह से जैसा आपको समझ में आए. राइट एफ ऑन योर थंब. सेकेंड पे आपको लिखना है एम, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. और थर्ड वाली जो फिंगर है दैट इज करंट, दैट इज एक्चुअली करंट. सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट. आप भूल जाओ, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है. पहले के टाइम पे रेडियो बहुत चलता था ना, एफएम एफएम एफएम. तो पहले फोर्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड और फिर करंट. फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और फिर करंट. चलिए रिपीट करता हूँ फिर से, कॉन्सेंट्रेट करो. नॉर्थ यहाँ पे था, साउथ यहाँ पे था. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मुझे एफ और एम में से मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में. ये मेरी फिंगर इधर चली गई, राइट. और ये किसका डायरेक्शन था? करंट का. करंट कैसे चल रहा था? रॉड कुछ इस तरह से, देखो आप अपने सामने आकर के करना. ये रॉड था और इसी डायरेक्शन में करंट भी चल रहा था, बिकॉज बैटरी का प्लस इस साइड है. इमेजिनेशन, बैटरी का प्लस यहाँ, तो ये ऐसे चलेगा. तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे रखना पड़ेगा. ये नॉर्थ टू साउथ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. ये हो गया करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स माई साइड. एंड नाउ लुक एट द डायरेक्शन ऑफ दैट थंब. बड़ा अजीब सा पोजीशन हो गया है, समझ जाना. ये डायरेक्शन थंब का कहाँ पर है? डाउनवर्ड. दिस मीन्स व्हाट? दैट रॉड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? ओके, फिर से देख लो. नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था. ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये करंट वाली डायरेक्शन है. तो ये डायरेक्शन को आप एक्स ले लो यार, और ये वाई है. तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? जेड डायरेक्शन, या तो नीचे या तो ऊपर. इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट. अब इसी क्वेश्चन में अगर करंट ऐसे चलता तो मैं आप ऐसे रखता. ये थोड़ा पोजीशन मेरे लिए ईजी है. करंट का डायरेक्शन आपके साइड हो गया, रॉड ऐसे रखी थी मैंने. एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो अभी रॉड कहाँ जाएगा? ऊपर. तो उस रॉड के ऊपर फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से उसने अपनी पोजीशन चेंज की. माइट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इस तरह से आप लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आप उस फोर्स को निकाल सकते हैं. ओके, so take a screenshot because this will help you a lot for 1 marks question. बहुत जगह पर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं. लेंथ दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट भी दे रखा होगा, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स. सो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चंस because that will help you a lot. Take a screenshot, then we'll come to this point, that is force between the two parallel current carrying wires. Alright students, so let us see the magnetic force formula between the two current carrying parallel wires. First of all, the diagram. You can see a 3D picture is there. One infinite length of wire is lying on x-axis and I1 current is flowing through that. इसमें से जो current flow हो रहा है वो है I1 and this is infinite length of wire. In the previous videos we have already derived the very first part of this chapter, where I have derived that whenever current flows through the infinite length of wire, then it produces this much magnetic field. इतनी magnetic field वो generate करेगा at a distance y from this wire, perpendicular distance. देखिए यहाँ से y जितने distance पे यहाँ पे magnetic field ये होगा, that is mu naught I1 upon 2 pi y, where y is the perpendicular distance. Now the question is why there is k cap. तो समझते हैं कि ये k cap क्यों आया. Where is the direction of current? On x. And where we wish to find that magnetic field? On y. So x और y का perpendicular direction कहाँ पर होगा? z direction में, क्योंकि magnetic field हमेशा perpendicular ही होती है. बायो-सावर्ट का एक्सपेरिमेंट. आपका जो करंट का डायरेक्शन है और जो डिज़ायर डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. तो फिर से रिपीट कर दूं, x इज द डायरेक्शन वेयर करंट इज फ्लोइंग एंड y इज द डायरेक्शन वेयर वी यूज टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड. तो x और y का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से ही यहाँ पर क्या आएगा? k कैप. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट इन्फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर. अच्छा, तो अब ये जो वायर है जिसने अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये इस तरह से क्लोज लूप बहुत सारे ये अपने आसपास में बनाएगा. इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यू कैन सी देयर इज अनदर वायर, है ना. तो अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा वायर है जिसकी लेंथ फिक्स है एंड दैट इज करंट कैरिंग लेंथ, करंट कैरिंग रॉड. सो वी हैव जस्ट डिराइव्ड
कि ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। बट वहाँ पे मैंने आई कैप क्यों लिखा है एल के साथ में, तो फिर से देखिए सेकेंड वाले की करंट का डायरेक्शन कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में, एंड देन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड विच यू हैव डिराइव्ड, ये वाला वैल्यू। तो अब हम ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे, ये आया, दैट इज म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई वाई एंड देन के कैप। सो रिमेनिंग इज आई क्रॉस के, एंड वी ऑल नो दैट आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप. So the final answer is mu naught I1 I2 L upon 2 pi y. If you talk about the magnitude of that value of the force, then this will be mu naught I1 I2 L upon 2 pi y. Where was it? What is L? L is the length of the rod which is kept in a magnetic field produced by the another wire. ठीक है, दो वायर के बीच में हमें जो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए था वो ये रहा, जो हम शुरुआत से अभी तक डिस्कस करते आए थे कि एम्पियर का एक्सपेरिमेंट था कि म्यू नॉट I1 I2 सॉरी एम्पियर का जो एक्सपेरिमेंट था स्टार्टिंग में बताया कि सेम डायरेक्शन में आपका अट्रैक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन होगा, तो वो यहाँ से पता चलता है। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो अट्रैक्शन समझ लेना, करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस ही आने वाला है, तो उससे आइडिया आता है कि एक बार अट्रैक्शन है तो सेकेंड टाइम पे क्या है, रिपल्सिव है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम 1 मीटर कर देते हैं, इफ वी टेक y इज इक्वल टू 1 मीटर एंड द लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 मीटर एंड current which is passing through that is also 1 meter, I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, sorry. So what will be the value of force? You can see F is equal to mu naught, that is 4 pi 10 minus 7, all these values are 1, so 2 pi is already there, so 2 into 10 raised to minus 7 Newton. This much force will experience by that two parallel wires and it is a very small value. ये इतना स्मॉल होता है कि जब हम वायर को रैप्ड करते हैं, चाहे वो सोलेनॉइड हो या फिर वो टोरॉइड हो, तो इतने अमाउंट का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट फोर्स लगता है, 100% फोर्स लगता है। और ये फोर्स का इक्वेशन है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई वाई। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, देन लास्ट हम डेराइव करेंगे, दैट इज़ लॉरेंज फोर्स। Okay, let's see the last point of this class, that is Lorentz force. तो लॉरेंज फोर्स पहले है क्या, लॉरेंज इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और लॉरेंज फोर्स क्या है, तो बेसिकली ये है क्या, तो देखो जब किसी चार्ज का इंट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है ना, तो उस पर फोर्स लगता है। चार्ज अगर रेस्ट मोड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर है, बट चार्ज अगर मोशन के फॉर्म में है, चार्ज जब चलना शुरू करेगा, उसके ऊपर वेलोसिटी आ गई, तो फिर उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब दोनों का फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होगा। उसका फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पे एक डेरिवेशन है। सो लेट्स सी दैट डेरिवेशन। सबसे पहले हमने लिया है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज़ ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड, है ना। प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप जाएंगे जहाँ पे करंट डेंसिटी 3rd चैप्टर है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल एज अ प्लेलिस्ट। आप सिर्फ सर्च करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय सचिन सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो को आप जरूर देखिए। तो ये रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है कि भाई J इज इक्वल टू एन क्यू वी डी, वेयर दैट वी डी इज़ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट है एक तरह की वेलोसिटी। Q चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N है नंबर डेंसिटी, ये है नंबर डेंसिटी, and we know that about that charge, that is current density. Current density का इक्वेशन होता है current upon area, okay? So I upon A is equal to NQVD, make I subject cross multiplication, ये result आया NQAVD, and after getting the value of I, now you have to do multiplication of DL, that is the small element of the length. तो DL से मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। दोनों तरफ हमने देखिए DL से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी DL से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो DL एक स्मॉल एलिमेंट है, तो आप उसके वेक्टर को यहाँ समझिए कि वो शिफ्ट हो गया, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ वी हैव IDL इज इक्वल टू NQAVDL, एंड वी नो दैट on this element IDL we have the formula of a magnetic force, that is DF is equal to IDL cross P। इसी लेक्चर में अभी स्टडी किया है IDL cross B, ओके।
तो अब हमने क्या किया कि ये जो B की वैल्यू है वो तो एज इट इज़ है, यू कैन सी, और आइडियल की जो वैल्यू है वो हमने रखा NQA VDDL, NQA VDDL, VD को साथ में कर दिया विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि हमें नंबर डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ गिवन वॉल्यूम। इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं इतने वॉल्यूम में, दैट इज नंबर डेंसिटी। सो स्मॉल n इज इक्वल टू n/v। और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा, और हाइट यानी कि स्मॉल एलिमेंट हो गया dl। यहाँ से अगर आप n को सब्जेक्ट करते हो तो दैट विल बी NaDl। यानी हमारे इस इक्वेशन में जो NaDl है वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। तो यानी ये जो फोर्स हुआ वो सभी चार्ज पार्टिकल का लगने वाला फोर्स है। और अगर मुझे सिंगल चार्ज के ऊपर चाहिए फोर्स ऑन वन चार्ज, तो बेसिकली मुझे इस कैपिटल N को रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन को N से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड यू कैन सी जैसे ही मैं इसको N से डिवाइड करता हूँ, नाउ आई हैव अ वंडरफुल इक्वेशन ऑफ दैट फोर्स, F इज इक्वल टू Q VD क्रॉस B। आल्सो यू कैन राइट ओनली V क्रॉस B, ठीक है। CBSE हमारे NCERT में ओनली V है, तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B आया। अब उसमें इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये है FM Q V क्रॉस B। क्लियरली यू कैन सी कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो I कैप, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो J कैप, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा K कैप, because I cross J is equal to K cap. And the second point you have to note that for rest charge there is no magnetic force, Fm is equal to 0, because यार velocity ही नहीं होगा तो magnetic force क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि velocity कराएंगे तभी करंट बनेगा, करंट बनेगा तभी क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए। करंट और करंट वायर के बीच में चल रहा है तो उनके मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है तभी फोर्स लगता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया, करंट नहीं बना, करंट नहीं बना तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया तो फिर मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गया, 0। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर कि मैग्नेटिक फोर्स वहीं पर होगा जहाँ पे चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा। इफ देयर इज नो वेलोसिटी देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड। अब सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स। व्हाई? बिकॉज थीटा विल बी 0 डिग्री, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। टू गेट अ बेस्ट मैग्नेटिक फोर्स योर चार्ज पार्टिकल शुड बी मूव इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चला तो उसके ऊपर बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। ओके, सो ये रहा हमारा लास्ट का पोर्शन, दैट इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। लेकिन अब लॉरेंज फोर्स क्या है, तो लॉरेंज फोर्स बेसिकली इट इज द सम ऑफ EF plus MF electric force. Already we have studied in the first chapter, that is QE, and magnetic force just derived Q V cross B. Q subject, sorry, Q common, so E plus V cross B. So this is the final formula of force which is called Lorentz force. और यहाँ से बहुत सारे कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। सो आप इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना, F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। सो इट्स डन फ्रॉम टुडेज सेशन, टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड इफ यू आर रियली एंजॉइंग दिस क्लास देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ शेयर दिस चैनल इनटू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन टेक अ मैक्सिमम बेनिफिट। मेरा टारगेट ही यही है कि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे और फिजिक्स सभी के लिए आसान हो जाए। आप सभी लोग वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप लोग इस सभी वीडियोस को ज़्यादातर शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट भी मुझे लगातार मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैं दिल से शुक्रिया करता हूं आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। देखते रहिए, इसी तरह से फिजिक्स पढ़ते रहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, और मैं ऊपर वाले से दुआ और प्रार्थना करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज़ ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन, सो प्लीज़ डोंट मिस दैट video. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Thank you so much for watching all the videos.